दरवाजा बंद करके चलो। एक मिनट, चक्कर है। ठीक है, चक्कर। Just one sec, Rakesh bhai. I think it's. So Rakesh bhai, we are absolutely ready to go now. First of all, let me welcome each one of you who's watching this session live. This is going to be a fun, thrilled session. That is what my commitment to each one of you. Let me welcome you from the bottom of my heart for watching this session live. I would just begin this session by asking very simple questions. The first very important question is, have you heard ever about the family mess and the conflicts with respect to the property distribution of assets? एक इतना बड़ा मुद्दा है जो राकेश भाई ने उठाया, और जो आज मेरे साथ हैं इस टॉपिक के ऊपर इतनी डेप्थ के अंदर हम जाने वाले हैं। और इससे पहले कि हम उस टॉपिक के अंदर डीप डाइव इन करें, मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछना चाहूंगा जो आपको कहीं ना कहीं डीपर लेवल पर जरूर इंट्रिग करेगा, और वो है, आर यू अवेयर अबाउट द एसेट्स एंड द बिजनेस, स्मॉल or maybe big, needs a very strong future planning? Yes my friends, अंडरलाइन कर ले इस बात को। आपके एसेट्स, आपके बिजनेस जिसके अंदर आप दिन रात अपना खून पसीना बहा रहे हैं, कैश फ्लो, प्रॉफिट, बट प्रॉफिट के बाद वेल्थ, वेल्थ के बाद उसको प्रोटेक्ट करना, सिर्फ और सिर्फ इट requires only one thing, and that is called future planning. My friends, today, believe you me, this theory works even if you think you do not have a successor, or you think this is for big businesses, not for small businesses. ये सेशन, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप अपनी फैमिली को यूनाइटेड देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं सदा, अगर आप रहें ना रहें तब भी, तो ये सेशन 100% आपके लिए, चाहे आप एक बिजनेस ओनर हैं, एक प्रोफेशनल हैं, ये सेशन आपके लिए जरूर है. And believe you me guys, today I want to welcome one of the greatest nano influencers who's a great friend to me. We share so many things, Rakesh, in common. I mean, definitely from yoga to meditation, to being a constant learner, बहुत सारी चीजें, which we share in common, and that's the only reason we share such a great bond with each one of us. And it's a privilege for me to introduce one of my very close friends, CA Rakesh Sharma, India's #1 succession planning guru and creator of 100 Years Legacy Model. The purpose of this session is that every business owner, हर एक business owner ये deserve करता है कि उसकी जो family है वो हमेशा united रहे और सदा खुश रहे. Trust me. और अगर आप इस बात को सुन के कहीं ना कहीं डीपर लेवल पे इंट्रीग हो रहे हैं ना, तो इस सेशन को आखिरी तक जरूर देखना, बिकॉज राकेश इज अ गाय who is so transparent, who is known for his transparency. He's going to unfold everything for you, my friends. Believe you me, that's the only purpose of organizing this session. And in a single line, all those of you who don't know about me, a single line is, I'm Ankur, an entrepreneur, author, and an inventor of Nano Video Blueprint. And I really, before I begin, I would love to acknowledge each one of you for watching this session live, and even if you were watching it after, I really acknowledge for your time and effort invested. We both will certainly make sure that you get the best value of your time and efforts invested, my friends. And just in order to make you very clear कि आज का क्या टॉप टेक अवे होगा, तो बड़े ध्यान से सुनना, बहुत क्रिस्प एक ही सॉलिड टॉप टेक अवे है जो बहुत बहुत पावरफुल रहने वाला है. वो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, which means that your family will always be united and happy forever, my friends. That is, क्या ये छोटा टेक अवे है?
है ना, फैमिली बढ़ती चली जाती है, कहीं ना कहीं वो बिखरती चली जाती है, यूनिटी कम हो जाती है, सिर्फ इतने से रीजन की वजह से, क्योंकि जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स है ना, जो इक्विलिब्रियम जो सेट है, बस वो कहीं ना कहीं सेट नहीं होता, प्लान नहीं होता, और इतने छोटे से कारण की वजह से आपकी फैमिली की यूनिटी, हैप्पीनेस स्टेक पे रहती है। इस सेशन को देखना, मिस मत करना, क्योंकि एंड तक आपको इतने सारे गोल्डन नगेट्स मिलेंगे ना। अगर आपने पेपर पेन नहीं लेना तो उसको जरूर ले लेना, और बाद में भी बहुत बहुत मजा आने वाला है। आपके जो भी डाउट्स होंगे ना, सब सारे के सारे अपने आप एड्रेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है, मैं आपको कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट और लूंगा। राकेश शर्मा है कौन, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अपने दोस्त के बारे में जब तक ब्रीफ नहीं करूंगा तो मजा नहीं आएगा। राकेश शर्मा इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ renowned speaker, a writer, and a succession planning guru for family run businesses and entrepreneurs. He is the also founder of RNA with over 23 years of experience. Oh my God, it's a privilege for me to interview you, Rakesh. And in advising small and medium enterprises and businesses. He is a recognized, well thought leader on the subjects of estate planning, business growth, and effective succession planning. And why is he here? You know why? The only reason is because he is on a mission to serve each one of you so that your families get united and bond with great happiness forever, ever, and ever. And just to brief you in a very short line, he has helped more than 20,000 entrepreneurs. Oh my God. In just last couple of years, he's been able to help 20,000 entrepreneurs to build their wealth, protect their loved ones, and plan effective succession planning through his major workshops held all across the country. Now, I have a privilege to have my one of the very closest friends, Rakesh Bhai, with me today, and it will be a super awesome session for each one of you to get an amazing unity and happiness in your family. Over to you, Rakesh bhai. कैसे इस सब्जेक्ट हुआ स्टार्ट, कैसे आज हमारी ऑडियंस को आप इस सब्जेक्ट के ऊपर पूरा एक बार रन थ्रू कर दोगे अगले 1 घंटे में? ओवर टू यू नाउ, राकेश भाई। थैंक यू अंकुर भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर देना पाऊंगा कि ये मैंने मिशन क्यों लिया, ये क्या सब्जेक्ट है ऐसा सक्सेशन प्लानिंग। इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा 1978 के अंदर। 1978 की बात है। मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार के अंदर पैदा हुआ। संपन्न परिवार का मतलब ये था, मेरे दादाजी जो है वो एक पटवारी है, और पटवारी का मतलब पूरा गांव उनके अंडर था। और मेरे फादर के 4 बेटे और 4 बेटियां, और इन चारों बेटों और चारों बेटियों की आगे शादियां हो चुकी हैं और उनके बच्चे, और उन बच्चों में हम लोग। 1970 के अंदर हम सब लोग खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पूरा गांव पटवारी जी के परिवार की तारीफ करता है कि परिवार हो तो पटवारी जी जैसा हो। कितने यूनाइटेड रहते हैं, कितने हैप्पी रहते हैं। और हम लोग भी इतने खुश थे। हमारे पास बग्गी थी, हमारे पास गांव, हमारे पास खेत थे, हमारे पास बंगलो थे, और खाने के लिए हमेशा ना किचन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ रहता था। क्या मजा था। दादाजी को ना घूमने का बहुत शौक था, और दादाजी एक दिन सुबह सुबह अपना 6 बजे अपना तमंचा उठाया और अपना निकल पड़े घूमने के लिए। और जब वो घूमने के लिए जा रहे थे, जैसे ही सड़क क्रॉस कर रहे थे, सड़क क्रॉस करते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। और पार्थिव शरीर अभी घर पे नहीं आया था, और घर के अंदर बातें होने लगी। वो संदूक की चाबी कहाँ रखी है, वो प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ रखे हैं, वो जो खेत है जो पुलिस थाने के पास है, वो खेत पिताजी मुझे देके गए हैं, वो जो माँ का हार है वो पिताजी मुझे देके गए हैं। और 4 दिन के अंदर जिस घर की मिसाल पूरा गांव दिया करता था, वहां पे ये बातें होने लगी कि पटवारी जी का परिवार बिखर गया, और वहां लड़ाइयां शुरू हो गई, और भाई और बहनों में आपस में एक लीगेसी डिस्प्यूट शुरू हो गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट शुरू हो गया। जिसके पास जो कब्जा आया उसने वो रख लिया। और मैं एक 8 साल का लड़का ये सारी चीजें देख रहा था, और हम लोग अपने पिताजी के साथ दिल्ली में एक CPWD के छोटे से मकान के अंदर रहना शुरू कर गए।
मुझे समझ में नहीं आया हम राजा से रंग कैसे, घी के साथ खाना खाने वाले बच्चे आज प्याज और गुड़ के साथ रोटी खा रहे हैं। उस समय मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं था। 1997 के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बना और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद चीजें कमाता गया। फिर वही सीक्वेंस मेरी लाइफ के अंदर मेरे क्लाइंट लेके आए, मेरे क्लाइंटों ने पैसा कमाया, पैसा कमा के और पैसा कमाया और फिर और पैसा कमाया, और उनके घर में भी वही हुआ। हेड ऑफ द फैमिली गया और हेड ऑफ द फैमिली के जाते ही घर में डिस्प्यूट, लड़ाइयां और ये सब होने लगी। मेरे पास दो चॉइस थी, या तो मैं अपने क्लाइंट को बोलता ओहो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और दूसरी ऑप्शन थी कि मैं उसको वो टूल्स दूं, उसको मैं वो टेक्निक्स दूं, उसको मैं वो सारी की सारी फॉर्मूले शेयर करूं जिससे कि उसके परिवार के अंदर हमेशा यूनाइटेडनेस रहे और हैप्पीनेस रहे। कैन यू बिलीव इट? मैंने सेकंड रास्ता चूज किया और मैंने प्रण किया, डिटरमाइन किया, मिशन बनाया कि आज के बाद मेरे क्लाइंट या मेरे से जो लोग कनेक्ट होंगे उनके घरों के अंदर, उनके बिजनेस के अंदर जिंदगी भर खुशियां रहेंगी और हमेशा हैप्पी रहेंगे। ये जो स्टोरी मैंने आपसे अपने दिल से शेयर की, जो मेरे साथ की, आई होप आप उसको रिजोनेट कर पा रहे होंगे। आपके घर में, आपके आसपास, आपने न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा होगा या आपके परिवार के अंदर या कहीं ऐसा हुआ होगा। आई होप कि आप मेरी फीलिंग को समझ पा रहे होंगे। आज भी वो मेरी आंखों के आगे राजा से रंक बनने का सीन आज तक है और मैं नहीं चाहता किसी भी परिवार के अंदर वो आज के बाद हो। दैट इज द रीजन आई टुक ए मिशन। इस सक्सेशन प्लानिंग के अंदर मैं ऑल ओवर इंडिया डंका बजा दूंगा और हर घर के अंदर खुशियां का भंडार ला दूंगा। अंकुर भाई, this was the reason I created the succession planning in India in the massive way. Touched. I think I'm moved. I'm just having goosebumps in my hand, and it's just giving me such a jittery feeling inside me. मतलब मुझे फील हो रहा है कि हर मिशन के पीछे एक जितना बड़ा मिशन दिखता है, आई थिंक राकेश भाई, उसके पीछे स्टोरी भी उतनी बड़ी होती है। उसके पीछे एक वाई इतना बड़ा होता है और तभी शायद वो वाई प्रोपेल करता है आपको और आप उस बड़े मिशन को बिना डरे, मैं आपको देखता हूँ आप कितनी मेहनत करते हैं दिन रात। जब आपसे बात करूं सक्सेशन प्लानिंग, उसके टूल्स, उसकी डेवलपमेंट, उसकी मैनुअल्स, उसके प्रोग्राम डिजाइनिंग, उसकी बुक्स के ऊपर काम, आप डूबे रहते हैं दिन भर। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसका जो उसका एक वाई है वो कितना स्ट्रांग है। इसीलिए आई थिंक वही आपको मोटिवेट करता है, राइट? करेक्ट भाई। Awesome. वेरी। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि अब हमारे को ऐसा क्या करना है जिससे कि हमारे परिवारों के अंदर हमेशा एक यूनाइटेडनेस और हैप्पीनेस बनी रहे। मेरे दादाजी ने क्या चीज मिस की वो मैं आपको ओपनली बोलना चाहता हूं। उन्होंने सक्सेशन प्लानिंग को बहुत लाइटली लिया। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है? मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, मेरे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेरे पास प्रोप्राइटरशिप है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास लॉकर है, मेरे पास ये सारी चीजें हैं। अगर मैं इन सारी चीजों को अपनी फैमिली के अंदर प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं और इसको मैं रिटर्न के अंदर चीजें मेंशन कर दूं जिसको कि लीगल डिक्लेरेशन माना जाता है, और वो जो लीगल डिक्लेरेशन होता है उसका नाम है WILL, and that is the will. अगर आपने अपने परिवार के अंदर विल की हुई है तो आपके परिवार के अंदर यूनाइटेडनेस और खुशियां आपने बीज बो दिया, जो कि एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ और बहुत बड़ा एक पेड़ निकल के आएगा तो जिंदगी भर खुशियां देगा। सो अगर मेरे पर्टिकुलर रिलेशन में किसी ने गलती की है, मैं नहीं चाहता ये गलती कोई और रिपीट करे। आई थिंक यू कैन रिजोनेट दिस स्टोरी विद जो आपके साथ या कहीं हुआ होगा। यस, I think this is truly phenomenal, राकेश भाई। मैं थोड़ा सा ना एक बार अब बहुत इसको ना अगर देसी भाषा में समझा जाए तो क्या एग्जैक्टली क्या विल होता है, थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट कर दोगे तो दैट विल बी ग्रेट। वेरी ट्रू। विल का मतलब ये है आपकी विश, आपकी डिजायर, आपकी इच्छा कि आप
अपनी संपत्ति का मतलब मैंने फिर बोला, आपका लैंड, आपका बिल्डिंग, आपका कैश, आपका बैंक बैलेंस, आपका लॉकर, आपकी LIC पॉलिसीज, आपके जो ज्वेलरीज, ये सारी चीजें आप अपनी इच्छा से किस किस को देना चाहते हो। कब? जब मिस्टर एक्स नहीं रहेंगे। मिस्टर एक्स जब नहीं रहेंगे और वो चाहते हैं कि उन अपनी इच्छा से वो चीजों को डिवाइड कर दें, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये सारी चीजें वो लिखते हैं उसको विल बोलते हैं। और विल पिक्चर में कब आती है? तब आती है जब मिस्टर एक्स जिसने विल लिखी है वो जिंदा नहीं होते हैं। पहले विल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी किसी भी संपत्ति के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, अधिकार आपका रहेगा। और इनकेस अगर मिसहैपनिंग होती है तभी विल पिक्चर में आती है। बहुत से लोग कहते हैं मेरे को विल लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको सबसे बड़ा रीजन बता दूं, अगर हेड ऑफ द फैमिली या कोई भी पर्सन अपनी विल नहीं लिखता और वो ये कह के जाता है मेरे जाने के बाद ये सब कुछ मेरी वाइफ का है, मेरे जाने के बाद ये मेरे सन 1 का है, ये सन 2 का है, ये डॉटर का है, डॉटर 2 की मैंने मैरिज कर दी तो वो तो किसी दूसरे घर में चली गई है, उसको तो मैंने सब कुछ कर दिया, अब विल लिखना भूल गया है। जैसे मेरे दादाजी ने भूल गए और जैसे आपके भी बहुत सारे यार दोस्त और रिश्तेदार भूल गए होंगे। अगर हमने विल नहीं लिखी और ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो लीगेसी है, इसका बंटवारा अब मेरी विश से नहीं होगा क्योंकि मैंने अपनी विश विल में नहीं लिखी। अब इसका बंटवारा कौन करेगा? जुडिशरी करेगी, कोर्ट करेगा। कैसे करेगा? वो लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा चीजों के लिए और पूरे के पूरे परिवार को जुडिशरी में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, प्रूव करने के लिए कि ये मिस्टर एक्स के लीगल हायरर है। मिस्टर एक्स अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो सिर्फ एक पेपर नहीं लिख पाए कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें डिवाइड करनी है, और जुडिशरी डिसाइड करेगा कि मिस्टर एक्स की संपत्ति किस तरीके से डिवाइड होगी। मेरे ना आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुन के कि मेरी संपत्ति किस तरीके से डिवाइड होगी। मेरे परिवार के अंदर जुडिशरी डिसाइड करेगा, और जुडिशरी भी कब डिसाइड करेगा? जब परिवार के सारे सदस्य लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएंगे। मैं मान भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, और आपकी लाइफ के अंदर भी मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। तो अंकुर भाई, सबसे बड़ा रीजन यही है कि प्लीज विल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विल होगी, मैं जिस तरीके से विश करूंगा, जिस तरीके से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा वैसे हो जाएगी। अदरवाइज कोर्ट के इंटरवेंशन से वहां पे खर्चा भी लगेगा, टाइम भी खराब होगा, हरासमेंट भी होगी, उसके बाद चीजें डिवाइड होंगी और फैमिली के अंदर यूनाइटेडनेस खत्म हो जाएगी, टुगेदरनेस खत्म हो जाएगी। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द यूनाइटेडनेस एंड हैप्पीनेस इन योर फैमिली बाय राइटिंग ए विल, बाय राइटिंग ए विल। सो मतलब राकेश भाई, आप तो ये कह रहे हैं कि जो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे तो ये लगता था कि सक्सेशन प्लानिंग जो है वो शायद बड़े बिग बिजनेस हाउसेस के लिए है, बट इसका मतलब तो ये है कि अगर आपके पास एक LIC क्यों ना हो या एक छोटा सा घर ही क्यों ना हो जाए, तो भी एक विल तो जरूरी है ही है। एग्जैक्टली भाई। सपोज करो कि मैं अपने फादर के लिए एक LIC पॉलिसी लेना चाहता हूं, और मैंने अपने फादर का नाम उसमें नॉमिनी लिखा, 10 करोड़ रुपए मेरे जाने के बाद मेरे फादर को मिल जाए, उनको मैंने नॉमिनी किया, और साथ में मेरी वाइफ रहती है, मदर रहती है और बच्चे रहते हैं। उन सबको तो मैं बहुत कुछ दे रहा हूं, लेकिन एक पॉलिसी मैंने फादर के नाम ली कि भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए, मेरे फादर ने जिंदगी भर ऐसे हाथ दिया है, जिंदगी भर तक हमेशा दिया है, कभी उनका हाथ ऐसे ना हो। इसके लिए मैंने 10 करोड़ की एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली और नॉमिनी उनका नाम कर दिया और विल करना भूल गया। अब आप सुनिए इसका इंस्टेंस क्या होगा। अब इन केस अगर मिस्टर एक्स या जिन्होंने पॉलिसी ली थी उनकी अगर मिसहैपनिंग हो जाती है और फादर इस अमाउंट को क्लेम करने इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं कि ये 10 करोड़ रुपए नॉमिनी मैं हूं, मेरे को दिए जाए, और उसी टाइम पे मिस्टर एक्स की वाइफ भी पहुंच जाती है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर क्लेम के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, वो विल की डिमांड करेगी, और जब विल नहीं होगा तो कोर्ट से लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, और लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट जो लाएंगे वहां पे कोर्ट आपको ऑर्डर देगा कि एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट फादर का कोई राइट नहीं है, पहले लीगल हायरर क्लास 1 को दिया जाएगा, मतलब वाइफ
मदर और बच्चे, उनमें वन थर्ड डिवाइड कर दिया जाएगा 10 करोड़ रुपए। फादर को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो बेसिकली हमने फादर को क्या किया, फादर को लास्ट स्टेज पे खड़ा कर दिया। सो प्लीज हमने समझना है, जैसे कि अंकुर भाई ने मेरे से पहले क्वेश्चन पूछा कि विल क्या है। विल आपकी विश है, किस तरीके से आप एसेट्स को डिवाइड करना चाहते हैं। नॉमिनेशन सिर्फ एक ट्रस्टी और कस्टोडियन होता है, वो उस पैसे को रख नहीं सकता, वो पैसा बेनिफिशियरी को देना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा, नॉमिनी कौन होता है और बेनिफिशियरी कौन होता है। नॉमिनी का काम सिर्फ पैसा लेना इंश्योरेंस कंपनी से होता है, और लेने के बाद वो पैसा बेनिफिशियरी को देना होगा। बेनिफिशियरी कौन है, जिसका नाम विल में लिखा हुआ है। अगर विल में नहीं लिखा, कोर्ट डिसाइड करेगा पैसा किसके पास जाएगा एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट। 2.2 करोड़ केसेस, ये अमाउंट जरा सुनिएगा, 2.2 करोड़ केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी। बिकॉज फादर या दादाजी ने विल नहीं लिखी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ, उसके बाद फैमिली के अंदर डिस्प्यूट हुआ, किसी ने कोई केस ठोका, किसी ने कोई केस ठोका, किसी के पास जो पोजीशन आया उसने वो रख लिया, और कोई भी सेटलमेंट नहीं हुई। इस 2.2 करोड़ के अंदर मैं एक भी केस और ऐड नहीं होने देना चाहता, एंड दैट इज माय मिशन। एंड थैंक यू सो मच अकुल भाई, उस मिशन के लिए आपने आज आहुति डाली और मेरे को आप अपने यहाँ आपने इनवाइट किया, जिसमें कि मैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ को एनलाइटेड कर सकूं इस बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट के साथ। दिस इज सो अमेजिंग एंड दिस इज सो हार्ट टचिंग। मतलब मुझे संभव पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक बंदा, मतलब हम लोग कितनी मेहनत करते हैं पढ़ाई करके, जैसे आप सीए बने, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, उसकी पूरी जिंदगी भर की मेहनत लगती है, माँ बाप की मेहनत लगती है, एक बच्चों के जीवन को आगे, उनको आगे एक्सेलरेट करने में, उनके पूरे इस जीवन को एक संजोने में, एक पूरी फैमिली को एकजुट करने में, मतलब माँ बाप, चाहे आज मैं हूं, चाहे मेरे माँ बाप हैं, उनकी जिंदगी मेरी जिंदगी लग रही है, और सिर्फ एक गलती, और मैं कह रहा हूं छोड़िए उस एक गलती को, मतलब इसका कहने का मतलब तो ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम व्यापार करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद हम ये सोचते हैं हमारी इतनी वेल्थ थी, आज इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, पर ये खाली एक कागज क्या इतना इंपॉर्टेंट है जो पूरी फैमिली की खुशियों का कागज है। तो ये तो मतलब, ये तो एक्चुअल में मतलब दिस इज, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आदमी को कमाने से पहले जो है ये पहले विल की और सक्सेशन प्लानिंग करनी चाहिए, और बाद में मुझे लगता है कि शायद वेल्थ प्लानिंग करनी चाहिए। मतलब ये तो वेल्थ प्लानिंग से सक्सेशन की प्लानिंग पहले होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक भाई, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हम लोग बोलते हैं जैसे ही बेटा या बेटी आपकी 21 साल की हो जाती है तो आपने विल बना लेनी है। 21 साल की, क्योंकि 21 साल से नीचे का बच्चा विल नहीं बना सकता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टियां खरीदते हैं और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अपने बच्चे का ज्वाइंट नेम डाल देते हैं। मैं आपको इंस्टेंस बताता हूं, मेरे पास नंबर ऑफ केसेस आते हैं कि फादर एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, और फादर जब प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उनको हाउसिंग लोन नहीं मिल रहा, या उनके पास पैसे इतने नहीं है, पैसे हैं लेकिन हाउसिंग लोन नहीं मिल रहा। तो इंश्योरेंस का बैंकिंग कंपनी उनको बोलती है कि आप अपने बच्चे का नाम ऐड करा लीजिए एज ज्वाइंट ओनर और ज्वाइंट को ओनर, जिससे कि हम आपको लोन दे देंगे और उसके आगे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और फादर ने ऐसे ही किया, फादर के ही सारे पैसे थे, फादर ने ही ईएमआई देनी थी, और दोनों ने अपनी प्रॉपर्टी ज्वाइंट ले ली। ज्वाइंट लेने के बाद कुछ दिनों के बाद बेटे की मिसहैपनिंग हो गई, और बेटे की मिसहैपनिंग हो जाने के बाद ये जो 50% शेयर जो सन का था, उसमें से फादर को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि सन ने अपनी विल नहीं लिखी थी। और विल जब नहीं होती है तो मैंने आपको क्या बोला, कोर्ट डिसाइड करता है कि किसको जाएगी ये प्रॉपर्टी, और कोर्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से डिसाइड करता है। कोर्ट ने बोला ये जो प्रॉपर्टी है ये इस डिसीट की मदर की है, इसकी वाइफ की है और इसके बच्चे की है, बट फादर की नहीं है।
98 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। 98 करोड़ की प्रॉपर्टी में सन का 50% राइट था, और वो डिस्प्यूट में चला गया क्योंकि डिसीट की वाइफ ने रिलिंक्विशमेंट डीड साइन करने से मना कर दिया। फादर को हम लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे अपनी विल लिख लें और अपने सन की विल भी लिख लें। जब जब हमारा इमोशन हाई होता है, इंटेलिजेंस लो होती है। हमने पैसा कमाना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, और बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करनी है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट भी करना है। हम लोग प्रोटेक्ट करते हुए वीक हो जाते हैं, वहां इमोशनल हो जाते हैं। प्लीज ऐसा नहीं करना। विल 2 घंटे का चैप्टर है, 2 घंटे के अंदर इसके अंदर मास्टरी की जा सकती है और अपनी विल लिखी जा सकती है, और खुद अपने घर पे बैठ के लिखे जा सकती है। आपको कोई बहुत ज्यादा हाई फाई प्रोफेशनल को हायर करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको बहुत ही सिंपल वे के अंदर क्रिएट करनी है। Awesome, राकेश भाई। आई थिंक जिस तरीके से आप सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट जो इतना बड़ा होता है ना, उसको जिस तरीके से सिंप्लीफाई कर देते हो, वो आपकी हमेशा एक कोर कॉम्पिटेंस रही है। और मैं हमेशा आपको इसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ कि इतने बड़े सब्जेक्ट को इतना सिंप्लीफाई करके बोल देते हो। और ऑडियंस में एक बात बताऊं आप सभी को, सिर्फ एक लाइन ना टाइप कर देना, आई विल राइट विल नाउ। आप एक बार ना यूनिवर्स में एनर्जी दे दो यार इस बात के लिए, क्योंकि देखो जो राकेश भाई के इमोशन है, जो उनकी जर्नी है, बड़े अच्छे से आप सब समझ पा रहे होंगे। कोई बंदा ना जब कभी अपनी स्टोरी शेयर करता है तो उसके पीछे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग भाई होता है, बड़ी एक दर्द होती है। अच्छा, आपकी वेल्थ प्रोटेक्टेड रहे ना, यही एक रीजन है जिसकी वजह से सच में वो चाहते हैं कि आप भी लिखें, और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। और राकेश भाई, आज मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि हमारी एक इंडियन सोसाइटी के अंदर एक विल को लेके ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो नहीं लिखी जाती, मुझे ऐसा लगता है, अब आई मे बी रॉन्ग, बट क्या कहीं एक फादर और एक सन शायद आपस में बात नहीं कर पाते? फादर सोचते हैं बेटे से बात कैसे करूं, और बेटा सोचता है फादर से बात कैसे करूं। क्या कुछ ऐसा भी मतलब आप इतने हजारों एंटरप्रेन्योर्स को डील करते हैं, बिजनेस ओनर से इंटरेक्शन करते हैं, तो क्या ऐसा क्या रीजन रहता है जो आपस में, भाई पता तो होता है फादर को विल की इंपॉर्टेंस है, कई केसेस में नहीं पता होता, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी इंडियन सोसाइटी में एक ये ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण भी कुछ ऐसा होता है क्या? करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन अंकुर भाई, वेरी गुड क्वेश्चन। पहली चीज मैं आपको बता दूं, फादर और सन, इन दोनों का कोई भी रोल नहीं है, इस रिलेशनशिप का कोई भी रोल नहीं है विल लिखने के अंदर, कोई रोल नहीं है। रोल क्या है? सब्जेक्ट की अवेयरनेस को लेके है। सब्जेक्ट की अवेयरनेस को लेके है। फादर को इस सब्जेक्ट की अवेयरनेस नहीं होती, उनको विल के बारे में पता तो होता है, लेकिन उन्होंने नॉर्मली प्रेम चोपड़ा जैसी पिक्चरें देखी हुई होती हैं। पुराने जमाने के अंदर विल को लेके इस तरह की मूवीज बनी थी जिसमें दिखाया गया था कि अगर फादर ने विल लिख दी, अब तो सड़क पे आ गए, तो अब बच्चे हमें जीते जी घर से बाहर कर देंगे। कुछ पुरानी पिक्चर्स के अंदर इस तरह का डिपिक्शन किया गया था, और वो डिपिक्शन इतना सेट बैठ गया यहाँ पे कि वो दोबारा चेंज नहीं हुआ। जबकि जैसे कि मैंने आपको बताया, विल के लिए आपको सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है। मैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर आज की डेट के अंदर भी वेबिनार करता हूं, और उसके अंदर 500 से लेके 1200 के आसपास एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, और उसमें ज्यादातर लोग 60 प्लस 55 प्लस इस एज के भी होते हैं। और वो आधे घंटे के अंदर मेरी प्रेजेंटेशन अंदर वो इतने एनरोल हो जाते हैं, वो बोलते हैं राकेश जी, आज तक किसी ने इतने सिंपल वे में नहीं समझाया कि विल की इंपॉर्टेंस क्या है। आज तक वो लोग ये बोलते थे मेरे घर में ऐसी लड़ाई नहीं होगी, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे घर में मेरा बड़ा भाई है वो संभाल लेगा, अभी मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं है कि मैं विल लिखूं। लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई, अपने परिवार का एक्सपीरियंस बताया, LIC का एक्सपीरियंस बताया, ज्वाइंट प्रॉपर्टियां जो हम खरीद लेते हैं उसका एक्सपीरियंस बताया, उन सब चीजों से मैं आपको कहना चाहता हूं, अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहता हूं। जरा सी अगर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ विल पता चल जाए कि ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट आपके परिवार के अंदर खुशियां भर भर के लाएगा, भर भर के लाएगा, और जिसको बनाना आसान है, और जिंदगी भर तक फैमिली खुश और यूनाइट रहेगी, और कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये। सो
अंकुर भाई, मैं यहाँ पे ये चीज कहना चाहूंगा, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है और 10 मिनट और 15 मिनट के अंदर एक विल की अवेयरनेस को इजीली कन्वे किया जा सकता है। आज 15 मिनट और 20 मिनट या 2 घंटे के अंदर विल बना के हम अपनी जनरेशन के लाखों करोड़ों रुपया बचा जाएंगे और वो डिस्प्यूट जो होने वाले हैं उसको खत्म कर देंगे और प्यार मोहब्बत क्रिएट कर देंगे। जिंदगी भर खुशी रहेगी, जिंदगी भर खुशी रहेगी। इतना इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट। लोग बोलते हैं विल चैलेंज हो जाती है, लोग बोलते हैं विल से कुछ नहीं होता, लोग बोलते हैं विल करने से बच्चों के अंदर मन मुटाव हो जाता है, मेरे बच्चे आज ही मुझे घर से निकाल देंगे। ये सब मिथ है। पुरानी पिक्चर्स को अपने माइंड से निकाल दीजिए। अपने कंसल्टेंट, अपने एडवोकेट, अपने सीए के साथ बैठिए। अगर वहां नहीं आपके पास टाइम तो मेरा वेबिनार अटेंड कीजिए। जो अंकुर भाई ने आज जो ये आपको अपॉर्चुनिटी दी है मेरे को आप लोगों के आगे खड़ा होने की, मेरी बातों को आप सीरियसली सुनिएगा, सीरियसली सुनिएगा और अपनी फैमिली में अपने फादर और मदर को बार बार ये वीडियोस दिखाइएगा कि सुनिएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ विल कितनी है। इसको सुनिएगा कितने पैसे लगते हैं उसको बनाने में। एक विल को बनाने में बहुत महंगी होती है, इसको बनाने में 0 पैसे लगते हैं। वाओ, 0 पैसे लगते हैं। आप अपने घर पे बैठ के बनाएंगे, प्लेन पेपर पे बनाएंगे, प्लेन पेपर पे बनानी है। सो अगर इसमें राकेश भाई मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या ये स्टैम्प पेपर के ऊपर जरूरी नहीं होती? क्योंकि ये भी मेरे तो दिमाग में ये था कि ओके। नहीं नहीं, प्लेन पेपर पे भाई बनती है, प्लेन पेपर पे आप बनाते हैं। आप इसको रजिस्टर कराएं या रजिस्टर ना कराएं, दोनों केस के अंदर ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। हम रजिस्टर विल का मतलब ये होता है कि हम रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं और वहां पे जाके साइन कर रहे हैं, अंगूठा पंच कर रहे हैं और विटनेस को भी वहां लेके जा रहे हैं, जो विटनेस ये कह रहे हैं कि राकेश शर्मा ने साइन हमारी प्रेजेंस में किए हैं। दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है एज पर द लॉ। आप प्लेन पेपर पे, ये एक प्लेन पेपर है, इस प्लेन पेपर के ऊपर विल लिखिए ना। आपके पास फॉर्मेट नहीं होगा, आई नो, आपके पास फॉर्मेट नहीं होगा कि विल में लिखते कैसे हैं, और उसको मैंने वो भी आपके बर्डन दूर कर दिया। मैंने अंकुर भाई के साथ एक लिंक शेयर किया है, आप उस लिंक से अपना विल खुद बना सकते हैं। फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लेंगे और फॉर्मेट डाउनलोड करने के बाद घर बैठ के विल खुद बनाएंगे 0 पैसे पे, 0 पैसे पे। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप अपने एडवोकेट और अपने सीए को फोन करेंगे और मैटर को रिजॉल्व करेंगे। इतना महंगा है एक विल बनाना, इतना महंगा है। भाई जो आपने आई थिंक ये गिफ्ट हम सभी को दिया है ना, वो उसका डेफिनेटली जितने भी श्रोता भी इस इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, डेफिनेटली मैं लिंक जैसे ही सेशन खत्म होगा उसके बाद अपलोड कर दूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि राकेश भाई उसका फॉर्मेट ओपनली इतना मतलब बिकॉज कहीं ना कहीं मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, एक डॉक्टर के लिए तो एक कागज ही होता है जिसकी वो कहते हैं ना, मैंने तो यही सुना है कि कलम की ताकत होती है बड़ी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की, एक सीए की, एक आर्किटेक्ट की तो कलम ही होती है। और आई एम सो ग्रेटफुल टू यू राकेश भाई, आप इतनी ओपनली, इतनी ट्रांसपेरेंटली, जो कि मुझे 100% मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपकी ट्रांसपेरेंसी है जिसको मैं हमेशा एडमायर करता हूँ। और जितनी मुश्किल चीजों को आप जितना आसान कर देते हैं ना, वो तो आई थिंक आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है ही। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक बार अगर बिल बन जाए तो क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं, क्या ऑल्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मतलब एक बार लीगल, क्योंकि डॉक्यूमेंट है तो थोड़ा सा उस पर अगर आप बताएं तो दैट विल बी ग्रेट। वेरी गुड क्वेश्चन। अंकुर भाई, एक बार अगर मैंने आज विल बना दी और विल के अंदर मैंने लिखा कि मेरे जाने के बाद मेरी सारी संपत्ति मेरी वाइफ की है या मेरे बच्चे की है, और कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे की शादी हुई और बहू रानी घर पे आई, फिर उसके बाद परिवार में कुछ और लोग भी ऐड होते गए। मैं आपको बता दूं, आप अपनी विल जितनी बार मर्जी चेंज कर सकते हैं। आप आज एक विल लिखिए, कल एक दोबारा एक और नई विल लिखिए, अगले दिन एक और नई विल लिखिए। वो विल जो सबसे लास्ट वाली होगी, जो सबसे लेटेस्ट होगी, सिर्फ वो ही विल मान्य होगी, वही एक्सेप्टेड होगी। उससे पहले की जितनी भी विल है वो सारी की सारी वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी। आई थिंक आई आंसर योर और क्वेश्चन। और फॉर्मेट राकेश भाई ने दे ही देना है, तो फॉर्मेट भी है आपके पास और सिंपल कागज पे लिखना भी कैसे है वो भी आपके साथ है। और अब आपको उसकी अवेयरनेस हो गई है। देखिए पता है क्या है, हर चीज ना, मैं तो एक चीज मानता हूँ, क्यों राकेश भाई आप सहमत होंगे इस बात से सुन के, कि अवेयरनेस ही शुरुआत करती किसी भी चीज का। अगर आप अवेयरनेस में ही नहीं है, एग्जैक्टली भाई, कुछ नहीं हो सकता। मतलब आज बड़ा मैं तहे दिल से ग्रेटिट्यूड पे करना चाहूंगा राकेश भाई के, कि वो इस मेरे
साथ इस इस मंच पे आए, और कहीं ना कहीं और इस लाइव इंटरेक्शन के अंदर आज एक इस माध्यम से बहुत हजारों लोगों के अंदर ये एक अवेयरनेस जरूर आएगी कि हाँ यार, विल ना हर घर की खुशियों की चाबी है। करेक्ट भाई। हर घर की Correct. खुशियों की चाबी सिर्फ वो हैरिसन के लॉक की चाबी नहीं, परंतु एक विल है। और ये इतनी बड़ी अवेयरनेस है, इतनी बड़ी अवेयरनेस है, मुझे लगता है कि राकेश भाई कि आपका जो मिशन है ना, अगर मैं पहले उसको शायद 10 में से 8 रिस्पेक्ट करता था, तो आज मैं उसको 10 में से 80 रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि इतनी इतने इतने बड़े मिशन, मतलब इतने लोग हैं जो कह रहे हैं आप अपने प्रॉफिट को डबल कर लो, आप अपनी लीड्स को डबल कर लो, आप अपनी सेल्स को डबल कर लो, बट वो तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी मतलब सब कुछ कर लो, करने के बाद आप वेल्थ भी बना लो यार, बट उसको प्रोटेक्ट नहीं किया। वो एक चाबी जो एक कागज जैसी बिल, जो आपकी पूरी जिंदगी की खुशियां नजर नहीं। क्या आपने राकेश भाई, क्या आज आपने जो एक्सेस दिया है ना, आई थिंक ये एक्सेस जो है ना, मैं तो मतलब मैं तहे दिल से चाहूंगा कि आपको मतलब इतनी पूरी दुनिया की इतनी ब्लेसिंग्स मिले कि आप सच में, आप इंडिया ही नहीं शायद पूरे पूरे वर्ल्ड वाइड इस सब्जेक्ट को लेके जाओ, जिससे कि हर घर की खुशियां, हर घर की यूनिटी बनी रहे। और भाई। मैं खुद अब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो शायद जब मैं इंटरव्यू करने से पहले जब आपसे इंटरेक्शन स्टार्ट करी थी, और अब मतलब पिछले 40 मिनट के अंदर मेरे अंदर इतने चेंजेस हुए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब मुझे अपनी फैमिलीज अगल बगल में दिख रहा है कि आपस में कई भाई बहनों में प्यार खत्म हो गया है, और उनकी प्रॉपर्टीज, राकेश भाई, कोई ऐसा नहीं कि 2-4 करोड़ की है, 100-100 करोड़ की प्रॉपर्टीज है। ट्रू भाई। 100-100 करोड़ की, 200-200 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, और भाई बहनों में बनती नहीं। सिर्फ और सिर्फ आज मैं समझ पा रहा हूं कि वो क्या कारण है। और जब आपस में भाई बहन लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं, और माँ या बाप में से कोई एक नहीं रहता, उनको उन्हीं बच्चों पे जिन पे फक्र होता था, उन्हीं बच्चों पे ना ये लगता है कि ये मैंने कैसे बच्चे पैदा किए, जस्ट बिकॉज क्योंकि एक एक वो फादर की जो अवेयरनेस में ना होना कि दिल की क्या इंपॉर्टेंस है। मुझे ऐसा लगता है राकेश भाई, आपने जो आज एक्सेस दिया है, वो आप हजारों ऑडियंस के अंदर ये जागरूकता लेकर आएगा। और जितने भी सवाल मैं आपसे पूछ लूं, आई थिंक आप इस ज्ञान के सागर हैं, मैं सवाल पूछता चले जाऊंगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने अवेयरनेस ही दे दी ना आज, आई थिंक ये सबसे बड़ा एक्सेस है, ये सबसे बड़ा एक्सेस है। और कुछ कुछ सवाल मेरे अभी भी मन के अंदर बहुत सारे सवाल तो चल रहे हैं, बट समय की सिंस अभाव है, तो मैं कुछ सवाल आपसे और पूछूंगा कि ये जो बिल है, क्या इसकी जो डेट है, इसका क्या फंडा होता है, मतलब इसका इट शुड बी डेटेड या कैसे होता है, थोड़ा सा वो और बताइए जरा। अंकुर भाई, जैसे मैंने बोला कि हमारे को विल लिखनी है, और विल आप जितनी बार मर्जी चेंज कर सकते हैं, और जो आखिरी विल होती है वही प्रिवेल करती है। अब अगर हम डेट नहीं लिखेंगे, और डेट के अलावा सारी विल हमारी ब्लैंक होंगी रिलेटिंग टू डेट, तो क्या होगा, फैमिली के अंदर डिस्प्यूट इतना ज्यादा हो जाएगा, हर कोई पर्सन ये बोलेगा ये बिल आखिरी है, ये बिल आखिरी है, ये बिल आखिरी है। तो अगर मैंने अपनी विल को डेटेड किया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है मैं अपनी पुरानी वाली सारी विल खत्म करता हूं, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरे को अब सिर्फ लास्ट डॉक्यूमेंट सिर्फ उसकी केयर करनी है, सिर्फ उसके बारे में एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बारे में कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। जब आप विल लिखें, आपने ध्यान रखना है हर पेज के ऊपर साइन करने हैं, और हर पेज के ऊपर आपने डेट भी लिखनी है। जहां आप साइन करेंगे उसके नीचे आप डेट भी लिखेंगे। अगर आपकी 4 पेज की विल है और आपने सिर्फ आखिरी पेज पे साइन किया, सिर्फ आखिरी पेज पे साइन किया, तो फ्यूचर में आपका कभी भी कोई भी पर्सन ये 3 पेज चेंज कर सकता है। तो ये 3 पेज चेंज ना हो, तो मेरे को सेम पेन से इन तीनों पे भी साइन करने हैं और डेट करना है। विल का डेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी पेज शुड बी साइन एंड डेटेड। यस अंकुर भाई। राकेश भाई, एक ये नॉमिनेशन का बड़ा एक मैंने सुना है कि नॉमिनेशन होती है, और नॉमिनेशन और बिल में एग्जैक्टली मतलब क्या चीज है जो ऊपर है, वो थोड़ा सा एक बार अगर इफ यू कुड जस्ट पुट अ लाइट ऑन दैट, दैट विल बी ग्रेट। सुपर्ब एंड एक्सीलेंट क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। अब आप समझिएगा, नॉमिनी क्या होता है। नॉमिनी का मतलब ये है, आप LIC गए, लॉकर खोलने गए, अपना नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने गए, LIC के पास गए, डीमैट अकाउंट खोलने गए,
या आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई सेविंग अकाउंट खोलने गए, या आप एफडीआर करने गए, हर जगह आपसे इन्वेस्टमेंट जो पर्सन कराता है वो क्या पूछता है, नॉमिनी बताइए, नॉमिनी बताइए, और आप हर जगह नाम भरते हैं। हम नॉमिनी क्यों भरते हैं कि इन केस अगर मिस्टर एक्स को कुछ हो गया, वो पैसा नॉमिनी को मिल जाए। ये पैसा नॉमिनी का नहीं होता। नॉमिनी का मतलब जो लॉ के अंदर है वो कस्टोडियन है और वो ट्रस्टी है इस पैसे का। अब ये पैसा लेने के बाद ये पैसा देना किसको है, ये पैसा देना है बेनिफिशियरी को। बेनिफिशियरी कौन होता है, अब आप वो समझिए। अगर आपने विल बनाई, विल के अंदर जिस जिस पर्सन का नाम आपने लिखा कि मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी इस पर्सन की हो जाए, वो पर्सन बेनिफिशियरी कहलाता है। एलआईसी का पैसा मिला, फादर अपने घर पे ले गए, अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया एज ए नॉमिनी, और उसके बाद डिसीड की वाइफ उठी और उसने बोला कि आपने ये पैसा अपने पास कैसे रख लिया, यू आर जस्ट ए नॉमिनी, और मेरे हस्बैंड ने विल नहीं लिखी थी, मैं लीगल हायरर हूं। फादर को ये 10 करोड़ रुपए अपनी डॉटर इन लॉ को देने पड़ेंगे, क्योंकि फादर सिर्फ नॉमिनी है, और नॉमिनी जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहां बनता है। बेनिफिशियरी प्रिवेल करता है, पैसा बेनिफिशियरी को मिलता है। बेनिफिशियरी दो तरीके से बनता है। नंबर 1, विल से। आपने विल में जो लिखा जिसको देना चाहते हैं उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। अगर आपने विल नहीं लिखी तब पूरी की पूरी फैमिली कोर्ट में जाएगी, लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लेगी, और लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से मिलेगा, और वहां पे जिस तरीके से सीक्वेंस लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में डिवाइड होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरी फैमिली में किसी भी तरीके का कभी भी डिस्प्यूट ना आए, बेनिफिशियरी, नॉमिनी और बेनिफिशियरी सेम रखेंगे, सेम रखेंगे। हमने डिफरेंस क्रिएट नहीं करना। बैंक, अगर मैंने एलआईसी पॉलिसी में लिखा फादर इज द नॉमिनी, मैं जब अपनी इंश्योरेंस, जब अपनी विल बनाऊंगा तो विल में उस पॉलिसी का फिर जिक्र करूंगा और मैं लिखूंगा कि फादर को ही इसका बेनिफिशियरी बनाया है। अब ये सीमेंटेड हो गया, अब ये सीमेंटेड हो गया, अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, हिंदुस्तान का लॉ कोई तोड़ नहीं सकता। तो हमने अगर परिवार के अंदर खुशियां लानी है तो इस चीजों को सीमेंटेड करना होगा, और अगर ये सीमेंटेड हो गया तो जिंदगी भर यूनाइटेड नेट और हैप्पीनेस की गारंटी मैं देता हूं। तो ये डिफरेंस है भाई बेनिफिशियरी और नॉमिनी के अंदर। बेनिफिशियरी प्रिवेल नहीं करता, नॉमिनी प्रिवेल नहीं करता, बेनिफिशियरी प्रिवेल करता है। नॉमिनी यहां पे है, बेनिफिशियरी यहां पे है, ये डिफरेंस है। बेनिफिशियरी विल विन करेगा, तो हमने बेनिफिशियरी जो बनाना है वो विल के थ्रू बनाना है, वो विल के थ्रू बनाना है। नहीं तो कोर्ट डिसाइड करेगा, नहीं तो कोर्ट डिसाइड करेगा। ये तो बहुत ही एक बड़ा पावरफुल कॉन्टेक्स्ट, बड़ा पावरफुल कॉन्टेक्स्ट है ये अपने आप में। और मतलब सच में आई थिंक दिस वाज अ वेरी वेरी आई ओपनिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर मी इवन, एंड इट विल डेफिनेटली बी एन आई ओपनिंग कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नॉमिनेशन का दिमाग में विल आता है तो नॉमिनी, नॉमिनेशन, बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती हैं। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू मेक इट वेरी वेरी मोर क्लियर, ताकि और डीप डाइव करके इसको हम अब समझें। तो मुझे एक चीज ये समझनी है कि फॉर एग्जांपल कि जो मान लीजिए घर की जो विमेन्स हैं, फीमेल्स हैं, क्या वो भी विल बना सकती हैं? करेक्ट, एक्सीलेंट क्वेश्चन। हम लोग अपने फैमिली के अंदर फीमेल के नाम से बहुत सारी प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, उनको उनका ऑनर बना देते हैं जी। पैसा उनका नहीं लगा होता, पैसा उनका नहीं लगा होता, बट 50% ऑनर होते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खोली हुई हैं, पार्टनरशिप फर्म खोली हुई है, इवन प्रोप्राइटरशिप भी खोली हुई है, और वो भी वाइफ के नाम से खोली हुई है। अगर विल नहीं बनती है, अगर विल नहीं होती है, तो प्लीज आप सुनिएगा कि फीमेल की प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होती है। अगर एक फीमेल है और उन्होंने विल नहीं बनाई है, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। वो 2 भाग कौन से हैं? 50% हस्बैंड को जाएगा, 50% बच्चों को जाएगा। और अगर बच्चे 5 हैं, 5 बच्चे हैं और एक हस्बैंड है, तो 1/6 शेयर सबका हो जाएगा। प्रॉपर्टी फादर की थी, पैसा फादर ने लगाया, नाम ज्वाइंट में डाल दिया वाइफ का, विल नहीं बनाई, बच्चों की शादियां हो गई। अच्छा, डॉटर की भी शादियां हो गई और डॉटर भी शादी होके दूसरे घर में चली गई। अब ये जो मदर का 50% का स्टेक था या फादर का जो 50% का स्टेक था, इन दोनों के अंदर डॉटर का जिंदगी भर स्टेक है। डॉटर के बाद उसके बच्चों का भी स्टेक है। तो ये जो
ये जो हस्बैंड और वाइफ ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी ज्वाइंट, ये सोचते हुए कि चलो 50-50 ले लेते हैं, और वाइफ की विल नहीं बनाई। तो अब ये जो वाइफ की विल नहीं बनाई, और अगर वाइफ को कुछ हो जाता है, ये जो वाइफ का शेयर है डिवाइड हो गया, 5 बच्चे और 1 हस्बैंड, तो हस्बैंड को शेयर मिला 1/6, और इसके अंदर 3 डॉटर थी। उन 3 डॉटर को शादी हो जाने के बाद भी शेयर मिलेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से। मैं आपको टेक्निकल नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन मैं आपको आपकी लैंग्वेज में ही समझाना चाहता हूँ। सो प्लीज इसको समझिएगा कि अगर आपने अपनी फैमिली में अपनी डॉटर इन लॉ, अपनी डॉटर, अपनी वाइफ, अपनी मदर, इनके नाम से आपने डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्रॉपर्टियां खरीदी हुई हैं, डीमैट अकाउंट खोले हुए हैं, हमने उनकी भी विल बनानी है, उनकी भी विल बनानी है, पीरियड पीरियड। बहुत मतलब ये तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि राकेश भाई आपने जो ये जो पॉइंट रेस किया ना, मतलब फीमेल्स वाला, ये इतना और एक दोस्तों में एक बात बताऊं, जितने भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, ये 20,000 एंटरप्रेन्योर्स की जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उनमें से सवाल है जो राकेश भाई और हमने डिस्कस किया कि नहीं, ये सवाल ऑडियंस के सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, राइट राकेश भाई? आई थिंक एंड दैट्स द ओनली रीजन मतलब मुझे, और हर सवाल का जो राकेश भाई जिस तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से आप जवाब दे रहे हो, मतलब मुझे इतना मजा आ रहा है सुन के। मतलब मुझे तो ये फील हो रहा है कि दैट मीन्स कि अगर एक फैमिली के अंदर, अगर और विमेंस के अंदर प्रॉपर्टी, मतलब हर फैमिली, मतलब मुझे लगता है कि हर फैमिली के अंदर शायद 50% फैमिलीज के अंदर आज कहीं ना कहीं, इंडिया के अंदर तो विमेंस के नाम पे प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी भी कम होती है, करेक्ट, वेरी ट्रू, राइट? और कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स को डिवाइड करना होता है तो डीमैट अकाउंट्स भी जरूर होते हैं, सबकी रिटर्न्स अलग अलग होती हैं, तो एलआईसीज भी अलग होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी आपकी जैसे लाइफ में मतलब फीमेल्स कहीं ना कहीं वो माँ के तौर पे, बेटी के तौर पे, बहन के तौर पे होती, ऐसे कहीं ना कहीं एसेट्स के अंदर भी फीमेल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है हमारी इंडियन फैमिलीज के अंदर। और ये तो मतलब आप जो कह रहे हो राकेश भाई, वो इस तरीके से कह रहे हो कि विल बना ली तो आप बुलेट प्रूफ हो गए, और अगर नहीं बनाई तो ये तो मतलब कोरोना की तरह जो है वो मल्टीप्लाई होकर तंग करेगा, मतलब। यस, वेरी ट्रू भाई। मैंने आपको क्या बोला, 1978 से जिस परिवार के मैं जन्मा था, उस टाइम के अंदर बहुत सारे अंकल चले गए, बहुत सारे बच्चे चले गए उनके, बहुत सारी आंटियां चली गई, लेकिन कोर्ट के अंदर डिस्प्यूट आज भी जिंदा है, और अगली 3 जनरेशन आपस में बात नहीं करती हैं। तो आपने ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि ये तो कोरोना की तरह ये फैलता जाएगा, ये फैलता जाएगा, और इसको ना फैले, पेन पेपर के ऊपर बिल लिखनी है, पेन पेपर के ऊपर बिल लिखनी है। और अंकुर भाई आपको पूरी की पूरी फॉर्मेट दे रहे हैं और पूरी हेल्प करा रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स को आपके लिए लेके आते हैं, कभी कोई टाइम के करता है, कभी विल के ऊपर बात करता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू अंकुर भाई के उन्होंने मुझे ये टाइम दिया कि भाई जिससे कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इस मैसेज को स्प्रेड कर सकूं। राकेश भाई देखिए, पता क्या है, मैं तो एक चीज जानता हूँ कि एक बिजनेस ओनर ना एक ऐसी कम्युनिटी है कि वो हमेशा स्टक रहता है, और शायद स्टक रहने के कारण ना वो बहुत सी चीजों की अवेयरनेस में आने के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाता। वेरी ट्रू भाई, वेरी ट्रू। और यही मेरा भी मिशन है कि एक बिजनेस ओनर को किस तरीके से उसकी लाइफ में हम फ्रीडम ला सकते हैं, किस तरीके से उसकी लाइफ में हम एक्सप्रेशन ला सकते हैं, यही मैं हमेशा बस यही चाहता हूँ, और यही एक पर्पस है, और यही मेरा वाय है। जैसे आपने कहा मेरा वाय, वो मेरी पटवारी जी की जो एक सीन है, मेरा मतलब मेरा वाय, मेरा सीन भी बड़ा क्लियर है कि जब मैं एक बिजनेस ओनर की लाइफ देखता हूँ जो इतना स्टक है, वो हर तरीके से बंधा हुआ है, उसके पैर ऐसे लगता है जैसे जंजालों में फंसे हुए हैं, उसका टाइम नहीं है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो कहीं ना कहीं जब अगर वो इतना बिजी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इतने बिजी होने के कारण कहाँ उसके पास टाइम है कि वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स के पास जाएगा। तो मेरे को यही लगता है कि मैं डिफरेंट एक्सपर्ट्स को उन तक ले जाऊं, उनकी नॉलेज को उन तक ले जाऊं, जिससे कि उनके जीवन में और फ्रीडम ऐड हो, और खुशियों से उनका जीवन भरा रहे, उनके अंदर की जो एक्सप्रेशन है वो बाहर निकले, और ज्यादा से ज्यादा वो वीडियोस बनाए और अपने मैसेज को अपने अंदर से बाहर निकाल के उसको लोगों तक लेके जाएं। और यही एक जीवन है, आई थिंक यही, इसी में मजा आ रहा है। और राकेश भाई, मैं बहुत मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ इंटरेक्ट करने में। कुछ और मेरे अंदर सवाल है जो मतलब अगर आप अलाउ करो तो डेफिनेटली आई वुड लव टू आस्क यू फॉर नेक्स्ट टाइम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो
मुझे एक चीज ये पूछनी है कि जो रजिस्ट्रेशन और जो नोटराइजेशन है, क्या ये मस्ट है या ये इम्पोर्टेंट नहीं है या ये जरूरी है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, विल जैसे मैंने आपको बताया, विल जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, इसको प्लेन पेपर पे बनाया जाता है। इसके लिए आपको कोई स्टैम्प पेपर लेने की जरूरत नहीं है, पीरियड। नंबर 3, इसको रजिस्ट्रेट कराना है या इसको रजिस्टर्ड नहीं कराना। रजिस्टर्ड क्या होता है? रजिस्टर्ड का मतलब ये होता है कि आपने विल बनाई और विल की 3 या 4 कॉपी लेके आप अपने रजिस्ट्रार के पास गए। वो रजिस्ट्रार जहां पे कि आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर को रजिस्टर करते हैं, वहां गए और वहां पे अपने साथ अपने विटनेस को लेके गए। वहां पे इस विल को आपने वैसे ही रजिस्टर कराया जैसे प्रॉपर्टी के पेपर को रजिस्टर कराते हैं, और वहां रजिस्टर करा के आप आ गए। आपने अपनी विल को इसीलिए रजिस्टर कराया कि मेरी विल कभी चैलेंज ना हो। कोई ये ना बोले कि ये आदमी की कनपट्टी पे बंदूक रखी थी तो इन्होंने विल साइन की। ये आदमी तो ड्रंक था, और ड्रंक था तो ड्रंक जो है इससे जबरदस्ती विल बनाई गई। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है बहुत सारे डिस्प्यूट को जीरो कर दिया जाता है। फ्यूचर में जो विल चैलेंज हो सकती है उस चैलेंज को जीरो डाउन कर दिया, उसको जीरो डाउन कर दिया। अब अगर दूसरे केस के अंदर मैंने अपनी विल को रजिस्टर नहीं कराया, प्लेन पेपर पे ही रखा, साइन किए, एग्जीक्यूटर भी बनाया, विटनेस भी किए, प्रॉपर तरीके से सब कुछ वैसा किया जैसा रजिस्टर वाला करते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो डॉक्यूमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि रजिस्टर्ड है। लेकिन बस ये है, जो अनरजिस्टर्ड विल है उसमें लोग चैलेंज कर सकते हैं। वो चैलेंज ना कर सकें तो उसमें हमने कुछ प्रिकॉशन रखने हैं। वो प्रिकॉशंस के साथ आपने चलना है, और वो प्रिकॉशन क्या होते हैं वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। मैं पूरी की पूरी बुकलेट दे दूंगा कि आप जब अपनी विल लिखें तो आपने उसके अंदर क्या चीजें ध्यान रखनी है कि आपकी विल चैलेंज ना हो। अगर परिवार के अंदर मनमुटाव भी है तो भी विल चैलेंज ना हो और वो स्मूथ निकल जाए। तो अंकुर भाई का आंसर इन शॉर्ट ये है, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती। रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा लेयर अपनी विल के ऊपर चढ़ा लेते हैं। अगर विल नहीं भी रजिस्टर्ड है तो भी वो इक्विवेलेंट है। कुछ लोग अपनी विल को नोटराइज कराते हैं। विल को नोटराइज कराने का मतलब ये है कि मैं अपनी विल को मैंने बनाई, विटनेस के साइन किए, और साइन कराने के बाद ये कॉपी मैं नोटरी के पास ले गया, और नोटरी ने सिर्फ एक स्टैंप लगाया, उसने बोला कि ये साइन मेरी प्रेजेंस में किए हुए हैं और उसको मैं नोटराइज करता हूं। तो नोटराइज कराएं या ना कराएं इट इज इक्विवेलेंट, रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं इट्स इक्विवेलेंट। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने विल लिखी हुई है। इंग्लिश में मत जाना कि वो इंग्लिश में बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड के साथ होनी चाहिए, कोई प्रोफेशनल उसको राइट करे। अरे हिंदी में लिखो, पंजाबी में लिखो, जो आपकी मदर टंग है उसमें लिखो। हैंड राइटिंग में नहीं चाहिए, हैंड राइटिंग में लिखते हो तो अच्छा, कंप्यूटर पे टाइप करते हो तो अच्छा। अपने डॉटर या सन को बोलो बेटा तू लिख, मैं बोलता हूं। इतना आसान है इस विल को बनाना, मेंटेन करना, क्रिएट करना। लेकिन नहीं किया, अगली 3 जनरेशन फाइट करेंगी, अगली 3 जनरेशन फाइट करेंगी। तो ये अंकुर भाई आंसर था आपके क्वेश्चन का कि मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना या नोटराइज। इन तीनों को मैंने डिफरेंशिएट किया। एक्सेलेंट, आई थिंक वेरी वेल आंसर्ड राकेश भाई। और एक सवाल आपसे और पूछूंगा कि क्या ये इफेक्टिव रहती है, एक जो विल है अगर वो लिख दी गई तो क्या वो उसकी पूरी लाइफ टाइम तक वैलिड रहती है, या उसका क्या, उसकी कोई वैलिडिटी, कोई एक्सपायरी डेट होता है, या क्या क्या एग्जैक्टली हाउ डज इट वर्क्स? गुड। जो आज अगर मैंने विल लिख दी, और विल लिखने के बाद मैंने उसके अंदर अपनी 10 मेरे पास एसेट्स है और मैंने 10 एसेट्स उसके अंदर डाल दी, अब ये विल मेरी जिंदगी भर तक चलेगी, जिंदगी भर तक चलेगी। लेकिन मुझे क्या ध्यान रखना है, मैंने विल लिखी थी और विल में लिखा मेरे जाने के बाद ये सारी संपत्ति मेरी वाइफ की है, बस इतना ही लिखा। और मुझे पता है कि 2 साल के बाद मेरी वाइफ एक्सपायर हो चुकी है और मैंने इस विल को रिवाइज नहीं किया, मैंने नई विल नहीं लिखी, तो अब ये मेरी विल खत्म हो गई। इस चीज का ध्यान रखना है। आपने विल लिखी और विल में किसी को बेनिफिशियरी बनाया और वो बेनिफिशियरी पहले चला गया विल लिखने वाले के, तो अब ये विल खत्म हो गई, विल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। या मैंने 10 एसेट्स अपनी विल के अंदर आज लिखी और अब इसमें से मैंने 5 एसेट्स बेच दी 2 साल के अंदर और 10 एसेट्स नई खरीद ली, तो अब मुझे क्या करना है, तो मेरे को एक नई विल बनानी है। विल बनाने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट। कितने पैसे लगते हैं? 0। कैसे बनाना होता है? घर के अंदर बैठ के। तो सब कुछ तो इतना आसान है, तो फिर क्यों इस सब्जेक्ट को इतनी डिफिकल्ट बना रहे हैं और लिंगर ऑन कर रहे हैं? कल करेंगे, परसों करेंगे,
कोरोना पीरियड खुल जाएगा तब मैं अपने कंसल्टेंट से मिलूंगा। एक मैं किताब लूंगा और किताब के अंदर पढ़ूंगा फॉर्मेट क्या होता है। सब मिथ है और अंकुर भाई आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू अंकुर भाई ये सारी चीजें क्रिएट करने के लिए। सुपर ऑसम यार, जिस तरीके से आप राकेश भाई इस बिल के कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हो ना, बिलीव यू मी, मुझे नहीं लगता कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद, इस एक लाइव इंटरेक्शन को देखने के बाद, शायद मुझे लगता है जितने हजारों लोग इसको देखेंगे, 100% श्योर है कि उनके अंदर ये अवेयरनेस जरूर जिंदगी भर के लिए रहेगी। और आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो पोस्टपोन कर रहे हैं इस चीज को, कि यार मैं, और क्या कारण है जो लोग पोस्टपोन करते हैं इसको, और वो पोस्टपोन ना करें उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे राकेश भाई? क्योंकि ना इंफॉर्मेशन ना, पता है क्या है, लोग सुन लेते हैं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन में जो है ना, जब तक एक्शन नहीं लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाली है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, है ना? तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो मतलब उसको पोस्टपोन एक तो क्यों करते हैं, और ना करें इसके लिए क्या कर, आप क्या क्या मैसेज है आपका? वेरी गुड अंकुर भाई, वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं चाहता था ये क्वेश्चन आप पूछें। पहली चीज ये मान लीजिए, कोई भी आदमी विल को ना लिखे या नहीं लिखना चाहता, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता क्योंकि हर आदमी, जिस आदमी ने वेल्थ बनाई है, कंपनी खड़ी की है, एसेट्स क्रिएट किए हैं और नंबर ऑफ एम्पायर अपने खड़े किए हैं, उस आदमी को आप ये नहीं कह सकते उसको समझ नहीं है। और इवन देन राकेश भाई, जिसने, मैं कहता हूं, एक छोटा घर और एक LIC पॉलिसी में बनाई है, आखिर खुशी और यूनिटी की डेफिनेशन तो उसके लिए भी वही है। ऐसा थोड़ी ना है कि उसके लिए यूनिटी की डेफिनेशन अलग है और जिसने टाटा बिरला के लिए यूनिटी की डेफिनेशन अलग है, उनके लिए भी वही यूनिटी है और उनके लिए भी वही यूनिटी है। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो हम पहली चीज ये कहना बंद करें कि शायद फैमिली के जो बड़े लोग हैं वो विल लिखना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन यंग जनरेशन जिस तरीके से अपने ओल्ड जनरेशन को कन्वे करती है विल के लिए, वो एक गलत मैसेज और वर्ड यूज करते हैं। अगर सीनियर पर्सन को, फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली को इंपॉर्टेंस ऑफ विल बता दिया जाए और बता दिया जाए कि आप अगर विल लिखते हैं, आपकी एस्टेट वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगी जैसा आप चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपकी फैमिली को कोर्ट में नहीं जाना होगा और आप अपनी फैमिली के लाखों करोड़ों रुपया बचा जाएंगे अगर आपने विल लिख दी। नंबर 3, आपने अपनी डॉटर की शादियां कर दी, उनको बहुत अच्छे अच्छे घरों में सेटल कर दिया और वो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे सेटल्ड हैं। अब आपके पास एक बिजनेस है, एक घर है, और ये बिजनेस और घर आप अपने किसी पर्टिकुलर बच्चे को देना चाहते हैं। अब अगर आपने ये डिसीजन नहीं लिया और विल नहीं लिखी, तो ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके डॉटर्स और पूरे के पूरे परिवार में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। क्या आप चाहेंगे आपके बिजनेस में आपके बच्चे के साथ उस बच्चे का जीजा जी भी कंपनी के ऑनर हो जाएं? तो अगर हमने विल नहीं लिखी तो इस केस के अंदर डॉटर का 9/9/2005 के बाद से पूरे का पूरा राइट है और उनकी फैमिली का भी राइट है। तो हम लोग अपनी फैमिली को या अपने बड़े बुजुर्गों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में अवेयर नहीं करा पाते, उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं बता पाते। तो मैं आपको बोला कि मेरे वेबिनार के अंदर 500 से लेके 1200 लोग आते हैं और मैक्सिमम 60 प्लस आते हैं और सब ये बोलते हैं अब हम अगले 2 दिन के अंदर अपनी विल लिख देंगे। पिछले 2 महीने के अंदर अंकुर भाई आपको जान के हैरानी होगी, अप्रोक्सीमेटली 14,000 विल लिखी गई हैं मेरे एफर्ट के द्वारा। 14,000 विल लिखी गई हैं जहां पे कि मैंने उनको कोच किया है ऑनलाइन। विल की इंपॉर्टेंस क्या है, विल कैसे लिखेंगे, एचयूएफ की प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड करेंगे, किस तरीके से आपकी एलएलपी, आपकी पार्टनरशिप फर्म, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपकी प्रॉपर्टीज, इन सब चीजों को आप अपनी विल के अंदर लिखेंगे और उनका हाथ पकड़ के लिखवाया है। तो अगर 13,000 14,000 पर्सन पिछले 50 दिन के अंदर विल लिख सकते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि लोग अवेयर या लोग विल नहीं लिखना चाहते। तो ये लाइन गलत है कि लोग विल नहीं लिखना चाहते। सही लाइन ये है, उनको सही तरीके से एडवाइस नहीं किया जाता, उनको अवेयर नहीं किया जाता। आप किसी पर्सन को अवेयर कीजिए, वो आज रात को ही विल लिख देगा, आज रात को, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फैमिली की यूनाइटेडनेस के लिए और हैप्पीनेस के लिए। यस अंकुर भाई। आई थिंक बिल्कुल राकेश भाई, जो आपने बात को शायद मतलब
बहुत ज्यादा इट इज वेरी वेरी हार्ट टचिंग दैट हर कोई चाहता है अपनी अपनी फैमिली की खुशी, अपनी फैमिली की यूनिटी फॉर लाइफ टाइम। और कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि राकेश भाई शायद आज अगर एक परिवार मतलब एक 4 जने मिलके एक परिवार बनाते हैं, राइट, और कुछ परिवार मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक ब्लॉक यस, बनाते हैं, यस, कुछ यस, कम्युनिटीज मिलके एक स्टेट बनाती हैं, और कुछ 27-28 स्टेट्स मिलके पूरा भारत बनाती हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर हर एक भारत का जो बच्चा जब वो 20-21 साल का होता है, अगर वो अपने माँ बाप को जिस दिन ये बोलने का लगेगा ना, और जिस दिन ये हिम्मत रखेगा कि मम्मी पापा मेरी विल बना दीजिए क्योंकि मैं अब 21 साल का हो गया हूं, उस दिन मुझे लगेगा राकेश भाई कि हमारे देश की हर एक परिवार के अंदर उतनी खुशी होगी जितनी आप चाहते हैं, तो यस। उतनी यूनिटी होगी जितनी आप चाहते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के हर एक नौजवान से तहे दिल से गुजारिश है कि अपने माँ बाप के बोलने का इंतजार ना करिए, उस समय का इंतजार ना करिए जो समय राकेश भाई को देखना पड़ा। वेरी सिर्फ ट्रू। और सिर्फ अगर आप 20-21 साल के हैं, 19 के भी है ना, तो अभी से ही अवेयरनेस में आ जाइए और अपना कैलेंडर सेट कर लीजिए कि माँ बाप को बोल के कि इसकी तैयारी अभी से ही चालू कर दीजिए, क्योंकि कितनी देर लगती है सिर्फ और सिर्फ कागज और अवेयरनेस और 15 मिनट में आप शेयर जो राकेश भाई ने करें, आप तुरंत फेसबुक सेशन खत्म हो गई, इसी सेशन के आप सारे लिंक शेयर करूंगा। बिलीव यू मी माय फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेप। ये इतना पावरफुल स्टेप होगा, जितने नौजवान दोस्त मेरे ये सुन रहे हैं, मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप 20-21 साल के हो गए हैं, अपने माँ बाप को बोलिए। और अगर कोई भी वाओ, वेरी गुड। आपकी आवाज बीच में कटी। यस यस राकेश भाई, आई एम बैक। ओके, ओके, ग्रेट। तो जैसे अभी आपने एक बात बोली कि फैमिली के जो यंग हैं वो तो विल लिख देंगे। आपने आपकी जो डिजायर है, जो आपने जो आज विश की है, ये नो डाउट सारे के सारे लिख देंगे। लेकिन मैं आज आपको ऑफर करता हूं उन लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं कि हम तो विल लिख देंगे लेकिन हमारे फादर इस कंसेप्ट को नहीं समझते। उनके यस, लिए ये मैं एक बहुत विषय, बहुत बड़ा विषय है, मतलब बिल्कुल सही कह रहे राकेश भाई। राइट। तो मैं तो लिखना चाहता हूं, मैं तो इस चीज को समझ गया, लेकिन मेरी मम्मी नहीं समझते, मेरे पापा जी नहीं समझते, मेरे मामा जी नहीं समझते, मेरे चाचा जी नहीं समझते, और ये सब बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। इनको समझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप लोगों के लिए मैं एक गिफ्ट लेके आया हूं, और ये वाह, गिफ्ट कि आप, बट आई होप कि आप ये गिफ्ट लेना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है, मैं आप लोगों की शक्ल नहीं देख पा रहा 100%। हूं, आपके अंदर से एक झंझनाहट सी आ रही होगी। और लोग ना लेना चाहें 100%, तो हाँ, यस, वेरी ट्रू। तो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हम अपने मम्मी पापा को ये सेशन दिखाना चाहते हैं या इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं जिससे कि उनको विल के बारे में पता लगे, तो मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं, और उस गिफ्ट के अंदर मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरे 12 तारीख के सेशन में आइए। 12 तारीख के सेशन में अपने मम्मी पापा को एनरोल कीजिए। वो सेशन कब है, वो अभी अंकुर भाई आपको एक लिंक भेज देंगे। उस लिंक के अंदर उसकी डेट है कि वो वेबिनार कितने बजे है, वो वेबिनार कितने बजे है। और अगर आप समझ गए हैं, उसी के अंदर मैंने एक विल का ड्राफ्ट भी दिया हुआ है। आप विल का ड्राफ्ट डाउनलोड करें और अपने आप विल बनाएं। जिनके पेरेंट्स अभी विल के लिए अलाइन नहीं हुए हैं, 1 घंटा मेरे साथ बिठा दीजिए। अगर आप अपने पेरेंट्स को 1 घंटा मेरे साथ बिठा देंगे, 5 मिनट आप उनको बिठाएंगे, उसके बाद वो उठना नहीं चाहेंगे उस सीट से, और आपके लिए वो विल वाह, बनाएंगे। तो 5 मिनट आप उनको बोलेंगे पापा थोड़ी देर बैठ जाओ, बस 5 मिनट के लिए, उसके बाद काम मेरा। अगर आपको लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, थैंक्स टू अंकुर भाई, थैंक्स टू अंकुर भाई, जिनकी वजह से ये मैंने ये नहीं गिफ्ट नहीं, आप सबके लिए। राकेश भाई, इस मास्टर क्लास की क्या इन्वेस्टमेंट है राकेश भाई, वो भी बता दीजिए एक बार। इस मास्टर क्लास की इन्वेस्टमेंट 0 पैसे है अंकुर भाई, ओ माय गॉड। 0 पैसे है, क्योंकि हर काम पैसा ऑसम। कमाने के लिए नहीं किया जाता।
मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज की डेट के अंदर जिनके पास Absolutely. पैसे हैं लेकिन हॉस्पिटल में बेड नहीं है। उनसे पूछिए पैसे की कीमत क्या होती है, और उस टाइम पे आप उनका साथ दीजिए, और जब आप उनका साथ देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती। अगर इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर मैं आपकी कोई हेल्प कर पाया, आपके परिवार को यूनाइट करने में और हैप्पी करने के अंदर अगर मैं आपकी हेल्प कर पाया, तो मेरे को जो दुआएं मिलेंगी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा होंगी, और मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इस मैसेज को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राकेश भाई, एब्सोल्युटली मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि मनी कैन बाय मेनी थिंग्स बट आवाज आवाज चली गई। अंकुर भाई, आपकी आवाज चली गई। यस अंकुर भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई होप कि कुछ ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रॉब्लम में भी हो सकता है। तब तक मैं कंटिन्यू करता हूं, तो राकेश आप भाई अपने बिल्कुल राकेश भाई, मेरे को आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल, और मैं आपको सुन पा रहा हूँ। और मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा राकेश भाई, तहे दिल से धन्यवाद आपका आने का, और जो आपने आज ये जो इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स दिए हैं ना, आई थिंक ये सच में पूरी ऑडियंस के लिए बहुत 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 ज्यादा काम आएंगे। उनकी लाइफ के अंदर 100% बहुत वैल्यू ऐड करेंगे, और उनकी जिंदगी की जो एक्चुअल में जो खुशियों का जो ताला है ना, उसकी चाबी जो आपने सिर्फ एक कागज, एक सिंपल फॉर्मेट, जिसका आप फॉर्मेट भी शेयर कर लिया फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने अपनी एक मास्टर क्लास शेयर कर ली जिसमें कि आप ये, अगर किसी पेरेंट्स को दिक्कत आ रही है एनरोल करने में, तो वो भी आप कह रहे हैं कि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आई थिंक दिस इज समथिंग ट्रूली ट्रूली, दिस रिप्रेजेंट्स कि आप गिविंग की क्या इंटेंशन है, हाउ यू वांट टू सर्व। आई रियली रियली आई एम टच्ड, आई एम मूव्ड एंड inspired by mission, and I really pray to divine कि आपका ये मिशन 100% बहुत 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 ज्यादा पूरे इंडिया के अंदर हर एक फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेस लेकर आए, और खुशियां लेकर आए, यूनिटी लेकर आए। एंड वंस अगेन आई रियली want to acknowledge every person for watching this session live. I know there must be thousands of people who watched this session. I really want to thank everyone who's watched this session and who is going to watch this session. Believe you me, this was truly powerful, but इसकी पावर तभी है जब आप एक्शन लेने के लिए अभी और अभी डिटरमाइंड हो जाए, बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाए, बिल्कुल डिटरमाइंड। और बहुत सिंपल है, राकेश भाई वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, किसी को भी कांटेक्ट करना हो, ये एक ऐसे शख्स हैं जो 24 घंटे 365 दिन आपके लिए, इनकी पूरी टीम अवेलेबल है। 100% he'll be always there to assist you, to support you. Thank you so much once again Rakesh bhai for being there with us. I really appreciate your presence, and thank you so much to every audience for watching this. God bless. Thank you Rakesh. Thank you Ankur bhai, thank you so much, thank you to all, thank you so much.